Okay. Good evening, everyone. So today we are going to cover um, positive negative development essays, and let's see if we face some problems. After this class, you should be able to write this essay without any issues. And don't worry if it's your first class, because I am going to be covering the structure properly. So first, I want to show you how a positive negative development essay is. Okay. First, they ask a question. A question is normally a situation that is happening in a country, or which is a fact. For example, in some countries, celebrities earn more than senior politicians. I think this is true in our country as well. That celebrities earn a lot more, um, right? So they have there are two variations to this question. In some questions, they ask the reasons, and in some questions, they don't ask the reasons. So in some questions, the next part could be, is this a positive or a negative development? Or in some questions, they are going to ask the reasons. These are the two variations. Today, we will cover both the variations and see. Okay. And then they ask, is this a positive or a negative development, where you have to take a side, and let's discuss how this essay is attempted. Okay. So first of all, before I jump into it, you before you start writing any essay, I think it's the first part to writing any essay is thinking about the ideas. So I want your clarity, I want your opinion. What do you think are the reasons that celebrities earn more than politicians? Why do you think this is happening? Let people join. Till then, we get time to think on these points. You get time. What do you think are the reasons? Why do celebrities earn more? Like movie stars, singers. Why do you think they're paid more than politicians? Anyone? Yes, Dinesh, do you have a point? सर यस एक तो उनका करियर स्पैन की कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि कितना होगा कितना नहीं होगा। जनरली वो छोटा होता है, और जितने भी करियर्स का ऐसा सिनेरियो होता है उस केस पे वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक है. So first point is very good actually. And first of all, the point is short career span and unstable careers. Like there is no stability in their careers. They might earn for 1 year, they might get a movie, then they might not get a role. So there's no stability in their careers. Like a politician doesn't lose his job. If he's working, he's going to get a fixed income. So there is no that stability in their job. And secondly, they have a short career span. Like most celebrities, like they earn for 10 to 15 years or probably 20 years at the max. Okay, most of them. There are exceptions like Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan, so on. But we are not talking about the exceptions. We're talking normal. In normal cases, it's about 20 years or so. Okay, so that is why they are paid a bit more because of these two factors. Okay, there are other reasons. I would consider this one reason. Can someone think of another reason? Why do they earn more? सर सेकेंडली अपना ये मूवीज वगैरह हम जो बनाते हैं वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन करते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स भी आ जाते हैं जल्दी। हाँ. एंड जो सीनियर पॉलिटिशियन वाला काम है वो गवर्नमेंटली फंडेड काम है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम है। वो मूवीज का आज रिलीज हुई 1 महीने के अंदर अंदर उसका लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा प्रोड्यूसर, इसलिए उनको दे भी देता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख के क्यों हमको लॉन्ग टर्म देना है पैसा, तो फिर इसलिए वो थोड़ा लिमिटेड ही दिया जाता है। दैट्स व्हाट आई। बहुत तो सेम ही हो गया ना शॉर्ट करियर स्पैन. बट आई एग्री. बट I'll add something to your point to make it more valid. So I would say, so the entertainment industry is a profit oriented industry. So obviously, the celebrities are going to earn more. Whereas if you consider politics, it's about public service. So all these fields which are about public service, they earn a little bit less because these fields are not about money. These are about serving the public.
So there are like, if you take examples, like I would say army people, they get a little bit less pay, not little bit, like considerably less pay. So this will always be there between between a profit making industry and a public service industry. So government politics is about public service. So that's the point, and which I agree with. Like, so oh yeah. So your first point was it was about profit. Yes, entertainment industry is a profit oriented industry, while this is not. हाँ Okay. जी. And third reason, which I think is very relevant in today's time, is that celebrities have multiple sources of income. Like they earn from endorsements, they earn from their performance. Obviously, they like public appearances. They like they get money for that. They get money for social media posts. They get money from multiple sources. So of course, they are whereas politicians, they earn a fixed salary. They have a fixed salary from the government that they'll get this much. So here they have multiple sources of income. So that is another reason that I think this is happening. Now you can consider that there are some positives of this, but I think it'll be easier to make this essay into a negative development essay. So first, can anyone think about the drawbacks of this? That celebrities are earning more than politicians. What's the problem with this? So in that scenario, politicians won't be that motivated to do the public service. They will be like, घर तो चलाना है, पैसा तो चाहिए, तो फिर they will go into corruption वाली चीज कि थोड़ा सा ऊपर से आ जाए, इधर उधर से आ जाए. Okay, so it encourages corruption because they try to earn through other means. So to make money. Yes, that's a good point. I agree with it. So encourages corruption. First drawback. The second drawback is how many of us are interested in becoming a politician? Very few. So that's the second drawback. Talented people do not join politics because they do not see it as a good career. So that, and which is bad for the country, you know, you need talented youth joining politics so that they can develop the country. But there's nothing like this, so very few people are interested in joining politics. Okay. And third, I think it it changes society's values. So society also starts valuing fame and money much more than public service. So that's another problem. So it starts valuing like these fields much more. I think the contribution of politicians is much more, I would say. They make policies, they develop the country. So but what happens, the youth, they start looking, they don't have role models in politicians. So they have role models in celebrities. So which is again a problem for me. They don't look up to politicians, they look up to celebrities. So that's the third point, I would say. So not a very strong, like not a very clear point, but I think we have good points overall if we consider. So if I recap the reasons, short career span and unstable careers, like they might get some roles and then they might not for a long time. So that's the first problem. The second problem that, like we discussed, is that entertainment industry is profit oriented, whereas it is a public service, politics. And the third point, in my opinion, which we covered, is multiple sources of income for for celebrities as compared to fixed salaries for for politicians. Okay, so I hope the reasons are clear. And after the reasons, we have discussed the drawbacks. The first drawback we considered is corruption. The second drawback that we considered is um, less talented youth attracted towards this. And the third one is society's values. Like it prioritizes, like people start valuing fame over public service, which is a negative thing, I think. Public service should be held in higher esteem. Okay, so these are the drawbacks that I feel. Now, I want to clarify something. You could have made it a positive essay as well. You could have written all positives. You could have also made it a partial essay. That's what I wanted to clarify here. In a positive or a negative development essay, you have the luxury of doing whatever you want.
you can make it a partial essay, you can make it a completely negative essay, you can make it a completely positive essay. So any of the choices. In this case, I'm going to make one paragraph for reasons and I'm going to consider it a negative development. I don't have any positives. मुझे लग रहा है इसके हमेशा इसके सिर्फ negatives ही हो रहे हैं, इसका कोई positive नहीं हो रहा. Positives भी हैं इसके, positives भी हैं. Like the right people join politics. वैसे लोग नहीं join करते जिनको money कमानी है. जिनको actual में service करनी है वही join कर रहे हैं. ठीक है, तो वो भी अच्छी बातें भी हैं. आई कुड हैव थॉट अबाउट द पॉजिटिव्स एज वेल बट आई एम नॉट, बिकॉज आई वांट टू मेक इट. देखो, the essay is not about your emotions, the essay is about your points. So I think it'll be easier for me so to write this essay. So I hope this is clear. Anyone has any doubts here? Okay, so let's move on. Okay, now how do we write this essay? Because I wanted to cover the pattern here. So सबसे पहले, what are you going to do? You're going to paraphrase the topic. So I am going to paraphrase it simply by saying it is true that in many parts of the world, celebrities like actors and singers are paid much more or earn much more than politicians and even experienced politicians. So instead of senior, I use the words experienced. I think it means the same thing. Okay. Then there are many reasons. So I will just write that. What are the reasons for this? I'll write there are many reasons for this. Okay. And then you can say, but I believe that it is a negative development for the society. So very simply, I've written that this is something which is negative for the society. Nothing complicated. Before the but, I'm going to put a comma. So a lot of you might think now, you might look at my introduction and think it is very simple. And trust me, it's simple. But it's a good introduction. Why is it a good introduction? Because it gives a lot of clarity. There are no doubts about your opinion in the mind of the examiner. You're clearly saying that it is a negative development. You have said there are many reasons, so he becomes clear that you are going to discuss the reasons in this essay. So although it looks simple, but it will fetch you very good bands. In fact, for a 9 band essay also, I would write it like this only. मेरा और कुछ नहीं आएगा. You might think I might do something special. I will not. ठीक है? So I would do the same thing for a 9 band essay as well. मेरे को यही करना, मैं यही करूँगा. I promise you. And you, if you trust me and do this, you will also score pretty good bands. Okay, so now moving on. Now we are going to write two body paragraphs. One is for reasons, one is for the drawbacks, one is for the negative impact of this. So, you just want to start. So, one of the main reasons why celebrities earn more or celebrities are paid more is that their careers. So, you just write the point. Their careers are very short lived. Many only earn for only earn for around 10 to 15 years. To add to it, इसी point को to add to it, there is also instability in their careers, and and uh, several celebrities don't get opportunities for many years. उनको opportunities ही नहीं मिलती बीच में many years in between roles. Hmm? Um, मतलब for years, not let's not write for years. So देखो मैंने यहाँ पे instability को समझा दिया है.
ठीक है, टू कॉम्पेंसेट फॉर दिस, तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दे आर पेड मोर, दे आर जनरली पेड मोर बिकॉज दे अंडरस्टूड अ बात कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, दे आर नॉट गोइंग टू बी अर्निंग रेगुलरली. सो दैट्स माई फर्स्ट रीजन. अब यही मैंने समझाना था, यू हैव टू पिक अ रीजन, उसको अच्छे से समझाना है. So 3 lines you have to explain that reason, and then you want move on to the second reason and then the third reason. That's all you have to do in the first paragraph. Now I clearly told you how would I have written the first paragraph कि कैसे मैं reason को explain करता. तो पहले मैंने reasons लिखा. One of the main reasons that celebrities are paid more is that their careers are short-lived. मैंने उसको समझाया कि many only earn for around 10 to 15 years. फिर मैंने instability का part को बताया. To add to it, there is also instability in their careers, and several celebrities don't get opportunities in between roles for years. उनको roles के बीच में many years तक opportunities ही नहीं मिलती है. There are several people like that. To compensate for this, they are generally paid more. उनको ज़्यादा pay करा जाता है. तो point is clear. Then you're going to write your second point, and then you're going to write your third point. Bus. This is your first paragraph. I'm not talking about the other 2 points. You are going to elaborate on them because today's class is not about point elaboration. Then we move on to the next paragraph. I've discussed this before, but I will say it again. I normally don't use a connector here. I directly jump to the negatives. So there are many, or there are a number of negative consequences ठीक है, of this trend on the youth, on the society and youth. Because my negatives are for the society and youth, I've added that part. And then I'm going to give my points. What are the negatives? To begin with, in addition, or apart from this, besides this, and last but not least, or something like that. You're going to give your 3 points. Okay, furthermore, last but not least is kind of cliched. Cliched is something which has become घिसा पिटा. Overuse के कारण जो बहुत अब अच्छा नहीं लगता. So I would not use it for this. Second, my opinion would be अगर तुम इस ट्रेंड को यहाँ पे paraphrase करके दोबारा लिख सकते हो तो please do it. So there are many negative consequences of celebrities earning considerably more than politicians. अगर इस ट्रेंड को दोबारा लिख सकते हो, I would say please do that because मेरा एक principle है अच्छी writing के लिए, whenever you move on to another paragraph, you should mention the topic again. Because if somebody stops reading in between, he should not have to read the previous paragraph to understand what's being said here. So supposedly somebody stops here, he takes a break. Then he has to start this paragraph. Now he'll say of this trend. He will not understand. He'll have to go back and to understand what is the trend. He'll forget it by then. So my opinion for this is in good writing, you do not, you generally mention the point again. You do not make people read the previous paragraphs. Okay. And then you're just going to repeat the conclusion that I would like to reiterate that although, it is becoming, although most celebrities in most countries, celebrities are earning much higher than politicians. I believe this is harmful for the society in general. So that is how I would end up writing my conclusion. Now, if anyone has any doubts regarding this, please let me know. If you want me to evaluate this, right, I would judge it to be around 8 bands. मैं ये मानूंगा कि around 8 bands का होगा, not less than that. The way I have written the template, you can say if you consider it a template, I don't. I think everything is very logical. ठीक है? So we are going to stop now for 2 minutes,
and I want your questions. If you have any doubts regarding this essay, please ask me ताकि हम इसको अच्छे से कर सके. And then you are able to rewrite such a essay again on your own without my help. So please tell me if you have any doubts here. Anyone? Dinesh, is the structure clear for this essay? यस द स्ट्रक्चर इज क्लियर बट आई वांट टू आस्क लाइक जो हमने पहला पैराग्राफ बनाया उसमें हमारा ऑलरेडी लेंथ काफी ज्यादा हो गई थी पहला पॉइंट एक्सप्लेन करते करते Hmm. सिंस वी पॉइंट्स तो उस Please वो पैराग्राफ बहुत एक बड़ा दिखेगा. एक सेकेंड रुक देख. It's around 60 words. I might not be, see, अगर तू देखेगा तो around 110 words का तेरे को पैराग्राफ बनाना है. अभी 58 words हुए. If you look here, can you see 58 words or not? Too small. नहीं नहीं आई एम एबल टू सी इट दैट्स ओके. 58 words, right? So my point is, अभी बाकी दोनों points तो इतने ज़्यादा explain नहीं भी करेगा तो भी चलेगा ना. So basically तो 30 words में second point and third point समझा दे. That will take your length to be around 110. राइट. ओके 110 का ये हो जाएगा, 110 का ये भी हो जाएगा अराउंड. लेट्स इमेजिन सेम लेंथ. ये ऊपर नीचे या हो सकता है. सी दिस माइट बी 100 और 120, समथिंग लाइक या दैट. ओके. एंड दिस इज अराउंड, आई वुड से दिस इज अराउंड नॉट मोर देन 45 वर्ड्स के आसपास होगा. 38 वर्ड्स. ठीक है. या सो टोटल लेंथ ना राइट नाउ 110 38 इज अराउंड 260. एंड तेरा जो कंक्लूजन है वो भी अराउंड 25 वर्ड्स का होगा, 29 वर्ड्स. सो बेसिकली योर लेंथ इज कमिंग आउट अराउंड 270 to 280, विच आई फील इज द परफेक्ट लेंथ. 250 ओके इज द मिनिमम. ठीक है. आई नॉर्मली ट्राई के स्टूडेंट्स के थोड़ा 20 30 वर्ड्स तुम थोड़ा ऊपर हो मिनिमम लेंथ से. राइट. सो आई वुड से दिस इज द परफेक्ट लेंथ in that case. Is एंड hmm, केस ऑफ द पार्शियल ऐसे लाइक जिसमें हम थोड़ा सा पॉजिटिव बाद में नेगेटिव या हम जैसे भी है hmm. तो हम तीन पैराग्राफ बना कर भी काम कर सकते हैं लाइक रीजंस के हाँ. बाद एक पॉजिटिव We बाकी दोनों will नेगेटिव. we'll do that. We'll do a partial one as well. अभी करते हैं. ठीक है. And we'll do the partial ऐसे में 3 paragraphs बनेंगे. You're absolutely right. बट मैं अवॉइड करता हूँ जिसमें रीजंस पूछे हो पार्शल जाना. मैं कोशिश करता हूँ मैं वन साइडेड जाऊँ. बिकॉज आई थिंक इट्स ईजियर फॉर मी वन साइडेड जाना. मैं उसको अगर इनफ पॉइंट्स हो तो मैं इग्नोर मार देता हूँ एक पॉइंट. और लेंथ में कोई इशू तो आ नहीं रहा होता. अगर लेंथ में इश्यूज आते तो मैं पार्शल का जरूर सोचता हूँ. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. ठीक है. बाकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट्स पे जाना है. द पॉइंट शुड बी स्ट्रॉन्ग. दैट्स व्हाट मैटर्स. ओके. एनीवन एल्स हैज एनी डाउट्स? इफ यू डोंट हैव डाउट्स नो वरीज. नहीं तो अभी हमने एक और ऐसे करना है, वहां पे रिवाइज हो जाएगा. चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऐसे. एक और ऐसे नहीं करना, बहुत सारे और ऐसे करने हैं. बट द सेम ऐसे वी आर गोइंग टू रिपीट हियर. सिमिलर ऐसे. सम कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ टू लिमिट वर्किंग आवर्स. तो कुछ कंट्रीज में ये हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कैनेडा हैज दिस लॉ. Even India has brought about a new labor policy, if you don't know about it, and they have also laws to limit working hours. So the question is, why was this law introduced? Why have they introduced this law in a lot of countries? Anyone? Any points you can let me know. There are laws to limit working hours. Why was such a law introduced? I Okay. Health? Yeah, maybe. Very good. So mentally workers are stressed. That is a good reason. Exploitation, पता है इससे ज़्यादा अच्छा मैं word बोल दूंगा. Does anyone know the meaning of this word? Exploitation. Dinesh, you should be able to tell me this word very well because you face this at your first work, the workplace we talked about in the beginning. या Remember? उठाना. Yeah. So like people make people overwork, ज़्यादा घंटे काम कराते हैं. मतलब उनको कम पे करते हैं उस हिसाब से. वीकेंड्स पे भी काम कराते हैं. मतलब एक्सप्लॉयटेशन है किसी का फायदा उठाना. So exploitation of workers. That happens. So maybe the government has introduced this to stop exploitation of workers. कि उनको आप 2 2 घंटे एक्स्ट्रा बिठाई जा रहे हो, 10 hours बिठा रहे हो instead of 8 hours 9 hours. They should not be sitting, right?
After that, some people give them work for home. Okay, I know some places like institutes that do that. They ask the teachers to do checking from home. So it happened to me. Teachers used to come कि मेरे को तो पूरी रात काम करना पड़ता है. It is so exhausting. ठीक है. So one reason is this. Can someone tell me another reason why the government might have done this? अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट के एंगल से सोचो. डोंट थिंक अबाउट कि वो वर्कर्स का फायदा सोचती है. गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा ये सोचो. सर टाइम पर लोग फ्री होंगे तो फिर मार्केट में उतरेंगे, पैसा आएगा मार्केट में, तो पैसा चलेगा फिर। Okay, it's a good way to think, but there's another direct benefit. आजकल के मेजर इश्यूज क्या हैं? Think about those. It solves one of that issues. Unemployment. See, if the working hours are limited, companies will have to hire more people to get the same work done. Right. Earlier, they were making one person work like 12 hours. Now they have to let him go at 8 hours. So they'll have another person work. They'll be hiring more people to get the work done. So this would increase employment in the sense. So मेरे को ये लगता है इसका एक मेजर रीजन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स को वोट्स मिलती हैं अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और पीपल आर अर्निंग. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है दोज गवर्नमेंट्स आर फेवर्ड, राइट? So that is the second reason in my opinion. Okay. Is this point clear? Employment wala? हाँ जी सर। Okay. And okay, now पता है क्या है? अब तुम जाओ यहाँ पे वर्कर्स के लिए इससे बहुत फायदा हो रहा है. Can someone think about the positives of this? Instead of negatives, now think about the positives. What are the positives for this? Yeah, work-life balance is a very good point. सी अब देखो मैंने थोड़े दिन पहले वर्क लाइफ बैलेंस पे ऐसे कराया था. वहां पे मैंने स्टेप बताया था कि गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए लॉ टू लिमिट वर्किंग आवर्स. अब लॉ टू लिमिट वर्किंग आवर्स का मैंने बेनिफिट बताया तो वर्क लाइफ बैलेंस. व्हाई? People will get more time to spend with their family, so this will be beneficial for them in that sense. So it's good, right? In that sense work life balance maintain hoga, workers के लिए अच्छा है. They'll get more time to spend on their hobbies, they'll get more time to spend with their families. So all of this is good. This is good for the society in that point of view. And I think overwork के कारण बहुत सारे workers mentally stressed भी हो रहे हैं. So I think it's good from that point of also. A lot of work stress is such a common issue. I talk about it like a lot of people are stressed due to their work. ठीक है. I am also responsible as a boss sometimes. I give undue stress to my staff sometimes. It happens. मैं भी देता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेस होता हूँ मैं उन पर पास ऑन कर देता हूँ. ठीक है. दे ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस फॉर मी बाय डूइंग सर्टन थिंग्स दैट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. तो ये होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी वर्किंग विदाउट स्ट्रेस. बट अगर लिमिटेड वर्किंग आवर्स होंगे तो मे बी दिल गेट इट विल रिड्यूस देयर स्ट्रेस. सो मेंटल स्ट्रेस भी मेरे को लगता है वर्कर्स का कम होगा. लिमिटेड वर्किंग आवर्स होंगे. कंपनी के लिए भी अच्छा है मेरे को लगता है. वर्कर्स वुड बी मोर प्रोडक्टिव. ये इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना हो तो तुम बढ़ा सकते हो. इफ वर्कर्स आर मोर रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश दे विल बी मोर प्रोडक्टिव. सो इट्स बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज वेल. और कम घंटे काम कराना. ठीक है. आई डू दिस मेरे जो मेरे टीचर्स हैं कुछ टीचर्स हैं हु वर्क 8 आवर्स. आई ट्राई टू गिव देम रिलैक्सेशन और ब्रेक इन बिटवीन. आई डोंट हैव द सेम उतना उतना नहीं करता. थोड़ा सा इवनिंग को रिलैक्सिंग बनाता हूँ ताकि उनको ब्रेक मिल जाए. And the next day they are refreshed. So that's another point. Any other advantage of this you can think of? Limited working hours ka. Okay. Drawbacks. Do you think of any drawbacks of this? सर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं. अगर अच्छा अगर कम हो वर्किंग आवर्स कम हो मतलब लिमिट हो वर्किंग आवर्स पे मतलब उसके नुकसान क्या होंगे? मतलब मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ दिन में. अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया हुआ है तो क्या नुकसान है?
ठीक है, वी कैन टेक दिनेश's पॉइंट। दिनेश, तेरा पॉइंट वो मार्केट वाला पॉइंट था, वो अच्छा था। पीपल विल हैव मोर पॉइंट, मोर फ्री टाइम, they can, they can, you know they can go and they'll shop more, they'll go to the markets. So ये point economy के लिए भी अच्छा है, they'll spend more time like earning, they'll spend more time spending as well, so it's good for the economy. They'll move out, they'll go to the markets, so it's overall good for the economy in that sense. ठीक है, सो ये भी पॉइंट कर सकते हैं एडवांटेज में करना। डिसएडवांटेज आई कांट थिंक ऑफ, बट यही अगर कोई करना चाहता है काम ज़्यादा घंटे तो उसको फालतू की लिमिट है। सो ही माइट थिंक दैट इट्स लाइक पीपल माइट बी people who want to do multiple jobs because they're not able to financially sustain their household, they might have to do it. They might consider the law to be a waste of time, so like to law to be hampering them in that sense, law उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। Okay, now this essay is exactly the opposite of how I thought about the previous essay. इसमें मैंने इसको completely एक तरह से positive development बोला है। पिछले essay को मैंने completely negative development essay करा था। ठीक है? The pattern would remain the same, but there would be certain changes. Can someone read the previous essay का structure और मेरे को बताओगे क्या changes मैं इसमें लाऊंगा जो मेरे को करने पड़ेंगे? Certain words would change. कुछ वर्ड्स चेंज होंगे, वेरी माइनर चेंजेस, बट वो चेंजेस होने हैं। सो नाउ आई वांट टू टेस्ट यू, व्हाट डू यू थिंक विल बी द चेंजेस? देखो, आई गिव यू अ हिंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे नेगेटिव डेवलपमेंट था तो यहाँ पे मैं बट यूज कर रहा हूँ। अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, सो आई कैन नॉट यूज द वर्ड बट, आई हैव टू मेक इट एन एंड आई बिलीव इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी। मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, रीजंस हैं और अच्छी भी है। तो एक पॉजिटिव वर्ड है, वहां पे बीच में एक नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। आई कैन नॉट पुट अ बट हियर, आई वुड हैव टू पुट एन एंड हियर। अगर वो नेगेटिव होता तभी बट आता। सो वन चेंज इज दिस। सिमिलरली यहाँ पे ऑल्दो भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी ऑल्दो की जगह अनदर वर्ड वुड कम के मतलब इन मोस्ट कंट्रीज ये ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट्स ने ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे हैं, एंड आई बिलीव दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट द there are many reasons why. In conclusion, um, I would like to reiterate that there are a number of reasons, a number of reasons why governments have introduced laws to limit working hours. And it is certainly beneficial for the society. And you could have said it is beneficial for the society, the employees, and even employers. क्योंकि तुमने employers को भी benefit बता दिया कि productivity improve होगी। Now, another drawback that someone mentioned, मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मिस हो गया, मैं बताने लगा था कि शायद वर्क प्लेस पे काम की एफिशिएंसी वगैरह, काम पे फर्क पड़े, प्रोडक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट माइट इम्पैक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। तो तुम ये सोचो, उनको ज़्यादा वर्कर्स रखने पड़ रहे हैं तो कंपनीज के लिए ड्रॉबैक ज़रूर रहेगा कि उनके प्रॉफिट वगैरह पे इम्पैक्ट होगा। सो अंडरलाइन दैट विल बी एन इम्पैक्ट, दैट सर्टेनली विल बी देयर। ओके, कुछ और पॉइंट तुम बताना चाहते हो या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो बताओ। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? वाई डिड आई नीड टू मेक दीज चेंजेस? आई नीडेड टू मेक दीज चेंजेस बिकॉज नाउ इट्स नॉट अ नेगेटिव डेवलपमेंट, इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो जब पॉजिटिव है ना तो एंड आएगा ना, बट नहीं आएगा। बट कंट्रास्टिंग वर्ड होता है, बट यूज़ करते हैं जब आपका टोन बदल रही हो। यहाँ पे मेरी टोन बदल नहीं रही है, उसकी फेवर में ही है, इसलिए मुझे यहाँ पे बट नहीं लगा सकता, एंड लगाना है। यहाँ पे ऑल्दो नहीं लगा सकता, एंड करके करना है। Okay. Anyone has any doubts here, or we can move to the next essay? बताओ। सर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, इसका मीनिंग नहीं समझ आता समटाइम। प्रोडक्टिविटी होता है कि मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैं एक घंटे में कितना काम करता हूँ। ठीक है, टोटल काम करता हूँ कितना नहीं, टाइम के हिसाब ओके से सर। कितना काम करता हूँ। ठीक है, जी फॉर सर। एग्जाम्पल अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ, पर 8 घंटे में से चार, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम होती है, डू यू एग्री? यस सर।
वो 4 घंटे तो वहां पे क्या ही करते रहते हैं, लंच ब्रेक पे जाएंगे, 1 घंटा लंच ब्रेक पे, लंच ब्रेक खत्म होने के 15 मिनट बाद आएंगे। जी प्राइवेट सर। प्राइवेट ग्रुप्स में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, पर दोनों काम कितना कर रहे हैं, 8 घंटे 8 घंटे। ठीक है, तो दोनों जी आठ आठ सर। 9 9 घंटे का काम कर रहे हैं, पर प्रोडक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा काम निकाल रहे हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज यस। वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर? ओके। जी सर। एनी डाउट्स? तो वैसे मेरे को बताओ, प्रोडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, अगर मेरा माइंड फ्रेश होगा कि माइंड थका होगा? सर जब माइंड फ्रेश होगा। हाँ, तो इसीलिए ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है ना। अगर मैं 8 घंटे ही काम कर रहा हूँ तो अगले दिन भी मैं फ्रेश माइंड के साथ आऊंगा। अगर मैं 12 घंटे माइंड काम कर रहा हूँ तो मैं अगले दिन भी थका हारा आऊंगा, और मेरी जी सर। प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। यू गेट द? यस सर। यस सर। ठीक है, सो ऐसे ये वाले स्टेप से प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। ये कंपनीज के लिए इस वे से अच्छा है कि वो फ्रेश जी होकर सर। काम करेंगे एम्प्लॉयज। ओके। जी सर। एनीवन एनी अदर डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। चलो, नाउ वी गो टू द now we are going to take another example, but this time we are going to make a small change and then तो एक small change करने लगे हम। क्या करने वाले? Can someone tell me what's the small change I'm going to make? Anyone? प्रॉब्लम पार्शल। Partial मेरा ओपिनियन में, और अटेम्प्ट में नहीं, मैं कुछ करूंगा, और क्वेश्चन में भी चेंज है। व्हाट्स द चेंज इन द क्वेश्चन? इफ यू वर लिसनिंग बिफोर हैंड, जिसने मेरे, दिनेश, यू मे बी यू जॉइंड अ लिटिल बिट लेट, बट स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी इस ऐसे के लिए। डू यू रिमेम्बर? एनीवन? नो वन रिमेम्बर्स? I said this ऐसे की एक वेरिएशन है। Does anyone remember that variation? No one? मैंने बोला था, देखो। No one remembers? Oh, I'm surprised. I thought किसी को तो याद होगा। नो? अच्छा, द सेकेंड वेरिएशन इस ऐसे की ये है कि वो बिना रीजंस के पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन में रीजंस नहीं होते। सो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर रीजंस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर ऐसे, अ वेरी इजी ऐसे। आई थिंक यू कैन ऑल अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन एज वेल, बट मेरे को तो यहाँ पे पैटर्न कराना है, तो वी आर गोइंग टू बी कवरिंग दैट ऐसे। सो द ऐसे इज लाइक दिस। देखो, an increasing number of people change their career and place of residence several times during their lifetime। ये ऐसे एकेडमिक एंड जनरल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत बार आता है। सो प्लीज़, अगर बाकी ऐसे में अटेंशन नहीं करी, पे नहीं करी, डोंट वरी, पर इस ऐसे में प्लीज़ करना। ठीक है, वैसे तो सब में करना है, इसमें ज़्यादा। इस दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? सो दे हैव नॉट आस्क्ड द रीजंस। आई होप दैट इज क्लियर। उन्होंने नहीं पूछा पीपल क्यों चेंज करते हैं, अपना घर भी अपना करियर भी क्यों चेंज करते हैं। उन्होंने बस पूछा ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कि बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, मतलब सेवरल टाइम्स, मतलब 10 10 बार अपनी नौकरी भी बदलते हैं, अपनी रहने की जगह भी बदलते हैं करियर लाइफ टाइम में। लाइक मतलब यू टेक टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे पेरेंट्स का जो ज़माना था, आई वुड से अबाउट देम, वो एक जॉब करते थे 25 30 ईयर्स, अगर अगर बदलते भी थे तो मतलब पूरे करियर में 2 3 बार बदलते होंगे, दैट्स इट। आजकल तो लोग हर 2 साल बाद दे चेंज द करियर, दे चेंज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। दैट्स अ टॉपिक। अच्छा, अब इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? तो पहले तो मेरे को बताओ इसके पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। सर पॉजिटिव पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि दे विल गेट चांस टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस एंड boost their knowledge about new things which they will learn when they change their job place। ठीक है, इफ आई से इट इन शॉर्ट, आई वुड से दे गेट डाइवर्स एक्सपीरियंस, उनको डिफरेंट टाइप का क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, इससे उनकी लाइफ क्या रहती है, इट कीप्स लाइफ क्या, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, गुड पॉइंट। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज करने से क्या भी उनको डिफरेंट डिफरेंट क्या भी सीखने का मौका मिल रहा है, कल्चर। कल्चर्स। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो ये दिस मेक्स देम मोर ब्रॉड माइंडेड, वो उनको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड भी बनाता है। ब्रॉड माइंडेड क्या होता है? कैन समवन फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ब्रॉड माइंडेड?
इट्स ओपन माइंडेड, चीजों के लिए अपने आप को ओपन रखना, सोचना समझना कि ये भी हो मतलब सकता है वो। हाँ, तो ओपन माइंडेड का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली? मतलब Suppose देखो, a lot of if I explain it further, I would say a lot of people think that their way of life is right. For example, a lot of my friends think कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो खाता है वो गलत है। ठीक है, मैं नहीं खाता नॉनवेज, बट मैं ये नहीं मानता जो खाता है वो गलत है। आई जस्ट से दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी। सो ब्रॉड माइंडेड ये होता है कि आप डिफरेंट लोगों को भी एक्सेप्ट करो। आप ये मत करो कि सारे मेरे जैसे ही हो जाएं, जो मेरे जैसा नहीं उसको आप नेगेटिवली ट्रीट करना शुरू कर दो। So that is broad-minded. You are accepting of other people. You do not think only my way is the right way. You believe that there are different ways of living. People follow different cultures, different religions. They're all right. ठीक है, सो सारे लोग, बाकी लोगों की भी सोच को एक्सेप्ट करना, ये होता है ब्रॉड माइंडेड। सो मैं ये बोलता हूँ कि जब डिफरेंट कल्चर्स में आप रहते हो ना, ब्रॉड माइंडेड पढ़ते हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ से। आप देखते हो कि वो भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी तो वैसे ही हैं, वो भी घर जाके खाना ही खाते हैं। रिलीजन डिफरेंट है तो क्या हो गया? ठीक है, इट्स लाइक दिस। एंड आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, यहाँ पे मेरे को पॉलिटिकली कुछ नहीं बोलना। मैं ये कह रहा हूँ ब्रॉड माइंडेड होना ज़रूरी है। जैसे अब इंडिया, अब यूएस में रेसिज्म है। रेसिज्म है क्योंकि वो लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं है। उनके वहाँ पे सारे लोग ज़्यादातर ऐसे ही हैं। जिस कंट्री में एक ही टाइप के लोग होते हैं ना, वो थोड़े कम ब्रॉड माइंडेड होते हैं। So, anyways, so that is my point here. Advantage, diverse experience, different cultures के बारे में उनको जानने का मौका मिलता है, benefit है। Can you think about another benefit? Okay, give me 1 minute. There's someone at the door. तब तक तुम point सोच के रखो। Okay, so please let me know the points. बताओ, बार बार चेंज करने के क्या फायदे हैं? सर ये बोल सकते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है स्पोर्ट्स की। जैसे हम वो एक छोटी स्मॉल सिटी में रहते थे, हम्म। जहाँ पे उनको न्यू फैसिलिटीज जो आजकल चलती है मॉडर्न फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर वो 2-3 साल बाद कुछ बिग सिटीज में जाएंगे, जैसे वो जलंधर से चंडीगढ़ मूव हो रहे हैं, तो देयर उनको कितनी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो उनको पहले अपनी सिटी में नहीं मिली। ऐसा बोल पता है क्या सकते है, हैं। अब ये क्या लग रहा है सिमरन, ये लग रहा है एक छोटे से शहर से बड़े शहर मूव करने के फायदे। जी। हाँ, पर मेरा वो टॉपिक नहीं है ना। टॉपिक क्या है ओके। कि लोग अपनी जॉब बार बार क्या करते हैं। वो चेंज करते हैं। हाँ, अब उसका ये थोड़ी मतलब है कि वो छोटे से बड़े जाए, शायद वो बड़े से छोटे हैं। ठीक है, यस सर।
तो यस। जॉब चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, फिर वो हमारी एजम्पशन हो जाएगी कि वो बड़े से छोटे जा रहे हैं। ठीक है, सो जी सर। नॉट बी ट्रू। और फायदे क्या हो सकते हैं जॉब चेंज करने के? फायदे क्या हो सकते हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। हाँ, पता है क्या है, मैंने पॉइंट लिखा था कि लाइफ थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग रहती है, क्योंकि आपको नया नया काम सीखने का मौका मिलता है। इससे सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। एक ही जॉब करके ना हम बोर हो जाते हैं, उससे सेटिस्फैक्शन लेवल भी गिर जाता है। पर अगर हम जॉब्स बदलते रहते हैं तो मन में थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना, कुछ नया सीखने को मौका मिलता है, दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज गुड। सो ये अच्छा है। एनी अदर बेनिफिट दे कैन थिंक ऑफ, यू कैन थिंक ऑफ? हायर पे सर। Higher pay, definitely a point कि they get to earn more money. Changing, they do it for this reason ना, करते ही इसलिए हैं, क्योंकि अब उनके पास नया एक्सपीरियंस होता है, so they are able to earn higher salary. देखो, उन्होंने 2 जॉब्स करी, अब उनके पास 2 टाइप के एक्सपीरियंस है। जब थर्ड जॉब में जाएंगे तो उनके पास 2 एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको ज़्यादा पे मिलेगी। फोर्थ जॉब के लिए जाएंगे, उनके पास 3 डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस है और ज़्यादा पे मिलेगी। सो पीपल मेनली डू इट फॉर दिस रीजन ओनली। तो ये भी एक पॉइंट है। गुड। Okay. Can you think of the drawbacks now? सर ये पे वाला मैं नेगेटिव में लेके जा रहा था कि Hmm. if people are gonna change their career too often, then they won't be having the expertise in one particular thing. Hmm. एंड एक्सपर्टीज के साथ पैसे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस अगर सेल्स का 1 साल का ऑपरेशन का 1 साल का, Hmm. वो अल्टीमेटली उतना पैसा नहीं देगा। अगर टेक एक ही फील्ड में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो रेलिवेंट एंड अच्छा एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा पे इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाट आई थॉट। इसलिए पे वाला पॉइंट तो मैं नेगेटिव में लेके जा रहा था कि उससे पे नहीं बढ़ेगी और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। लाइक इफ दे वांट टू मूव अप, दे वोंट हैव द क्लैरिटी, यार जाऊं तो जाऊं कहाँ। 2 साल में कभी यहाँ कभी वहां करते करते फिर अल्टीमेटली वो एक पोजीशन, एक हायरार्की में ऊपर जा ही नहीं पाएगा बंदा। वो हाँ, हमेशा बिल्कुल ठीक है। एसोसिएट तेरा वहीं पॉइंट तक ठीक है। है। और द पॉइंट इज वो चेंज अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, अगर ऐसा होगा तो वो शायद करे ही ना। तो मैं तो उसको उस या नजरिए से दे रहा हूँ, वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। अगर उनको कोई बेनिफिट दिखेगा तभी वो कर रहे हैं। और तू बता, तू कितने लोगों को जानता है जो हायर सैलरी से लोअर सैलरी पे जाते हैं, चेंज करते हैं खुद से? ना, आई एम नॉट सेइंग लाइक हायर टू लो उन्होंने करी है। उन्होंने उस टाइम पर उनको लगा कि यार इसमें उनको फायदा ज्यादा, तो उन्होंने चेंज करा। मे बी वो फायदा पैसे के लिए था तो ज्यादा तेरा टाइम। ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, करियर ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, बिकॉज मैं इस पॉइंट को, जो तेरा पॉइंट है, इसको ना डिफरेंट वे में लिखते हैं कि Like this is from my हाँ, personal experience. Like for the short term, I thought कि जब मैं IT से सेल्स में जाता था, मेरे को पैसे ज्यादा मिलते थे। I हाँ, was getting 3x, so I moved on. उसके बाद वो शॉर्ट टर्म में तो मेरे को फायदा दिया। अगर मैं लॉन्ग टर्म वहीं पे रखता तो अल्टीमेटली मेरा फायदा ज्यादा होता। इन हाँ, टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, करियर ग्रोथ में ज्यादा होती। मेरे हाँ, पास जो टाइटल होता, मेरा टाइटल सीनियर का होता, एंड सीनियर के टाइटल से पैसे भी अल्टीमेटली फिर उस हिसाब से ज्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी रहती है और ऊपर हायरार्की का क्लैरिटी रहती है कि ऊपर जाना कहाँ है, क्या ठीक मिलने वाला भी। ठीक है। सो हिज पॉइंट इज कि प्रमोशंस वगैरह पे, करियर ग्रोथ में इट माइट अफेक्ट, नेगेटिवली अफेक्ट, राइट? इन दैट सेंस, बिकॉज यू आर हाँ नॉट जी। into वन फील्ड। सो करियर या ग्रोथ एंड प्रमोशंस माइट नॉट बी वैसी नहीं मिलेंगी जो एक पर्सन एक ही कंपनी में लंबे समय तक, या एक ही जॉब में एक ही फील्ड में लंबे समय तक काम कर रहा है। he might get more promotions and more career growth। ठीक है। एंड सेकेंडली मैं ये बताऊंगा, देखो, कोरोना आया था। I did not hire those employees back which were there for me only a short time। जो मेरे को लगा कि मतलब वो बार बार, मतलब जिनके मन में था कि जॉब बदलनी है, ऐसा कुछ था, मुझे भी दिल नहीं था कि उनको मैं दोबारा रखूं। तो ये एक देखो टाइम है। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, अगर कंपनीज को लगता है द एम्प्लॉय इज नॉट लॉयल, एम्प्लॉय इज गोइंग टू शिफ्ट, थोड़ी देर में छोड़ के चले जाएगा, द कंपनीज ऑल्सो डू नॉट गिव देम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। प्रमोट करना उनको नहीं चूज करेंगे, किसी और को चूज करेंगे। सो ये एक वो रहता है, दे रिस्क लूजिंग देयर जॉब्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। तो कभी भी कुछ इकोनॉमिक डिफिकल्टी आएगी, दे विल बी द फर्स्ट पीपल टू लूज देयर जॉब्स, जो बार बार चेंज कर रहे हैं। जो एक जगह टिक के काम कर रहे हैं उनको प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोरोना आई हैड अ फ्यू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज ऑल्सो, लाइक हु हैड वर्कड फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, 5-6 years, और मेरे को पता था उन्होंने आगे भी करना है।
So I did pay them partially. थोड़ा बहुत मैंने उनको पे करा because I felt responsible. I couldn't pay a lot because मेरा भी काम खत्म हो गया था, but I did pay them partially. So मैं ये बेनिफिट कह रहा हूँ, ये कोई उन एम्प्लॉयज को नहीं देगा जो बार बार जॉब्स चेंज कर रहे हैं. सो दैट वुड बी माई पॉइंट है. सो ये एक नेगेटिव है. और मेरा एक नेगेटिव है कि यू डोंट मेक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स. जो तुमने पॉइंट, ये मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है. तुम जगह भी बदल रहे हो. Why didn't you focus on that? Place of residence also people are changing. See, I have been living in this place for a long time. I have deep friendships here. People know me. ठीक है, माई नेबर्स नो मी प्रॉपरली. मैं मतलब मेरे को लोग अच्छे से जानते हैं. मेरे को कभी कोई डिफिकल्टी आती है, दे आर देयर विद मी. आई कैन रिलाई ऑन देम. बट इफ़ यू कीप चेंजिंग जॉब्स लाइक दैट, तो ये नहीं रहता कि इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड होंगे उन लोगों के, एंड दे वॉन्ट बी एबल टू रिलाई ऑन देम. ऑन द पॉजिटिव साइड, इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर देम. और ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलता है. दे वर्कड इन वन कंपनी, दे वर्कड इन अनदर कंपनी. अब कोई वहाँ से एक कंपनी में कोई अपना कोई बिजनेस खोल रहा है, आप उसको जानते हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, ही माइट ऑफर यू अ जॉब कि मैं अपना कोई बिजनेस खोल रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन. सो इट डज ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू बिकॉज इट बिल्ड्स अ नेटवर्क फॉर यू बिकॉज यू वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज. इसका ये पॉजिटिव भी है. चलो, तो ये मेरे पॉइंट्स हैं. बट द पॉइंट है, अब तुम्हें ये पता चल रहा है कि इस ऐसे को वन साइडेड लिखना हमारे लिए बहुत क्या है, difficult, because there are not enough points to write a one-sided essay in this. Enough points नहीं होंगे, लेंथ नहीं बनेगी. अब मैं डिसीजन लेता हूँ क्योंकि मेरी लेंथ नहीं बनेगी, इनफ पॉइंट्स नहीं होंगे, तो अब मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इस ऐसे में पार्शल जाऊंगा. मैंने ये जानबूझ के ऐसे चूज करा था बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू क्लैरिटी ऑफ व्हेन आई थिंक आई नीड टू गो पार्शल. When I think there are not enough points to make a one-sided essay, a strong one-sided essay, that is when I decide to go partial. तो अब मैंने पार्शियल जाना है. अब मेरे को डिसीजन लेना है कि मैंने पार्शियल जाना है पॉजिटिव की फेवर में कि नेगेटिव की फेवर में. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स जल्दी से समरी में, एंड देन यू आर गोइंग टू चूज अ साइड फॉर मी कि सर ये साइड स्ट्रॉन्गर लग रही है. डू नॉट लुक एट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइंट्स. सो पॉजिटिव में तुमने बोला था उनके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस आता है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एक्सपीरियंस आता है. इसके कारण लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है, दे गेट टू लर्न न्यू थिंग्स. सेकेंड पॉइंट बोला था कि ब्रॉड माइंडेड दे गेट टू लर्न न्यू कल्चर्स, दे बिकम ब्रॉड माइंडेड. ठीक है. फिर तुमने बोला था उनका एक नेटवर्क बनता है विच ओपन्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम बिकॉज दे गेट टू मीट पीपल फ्रॉम different companies, different areas, so they build up a network which opens more opportunities with them. ठीक है, सो ये पॉइंट बोलूंगा. एंड somebody also talked about money. I would say higher pay for now. I do consider कि लॉन्ग टर्म में नहीं होता. I do agree with Dinesh, बट मैं लॉन्ग टर्म नहीं देखूं तो चलो मोर पे तुम कह सकते हो बिकॉज ऑफ द डाइवर्स एक्सपीरियंस. वो पॉइंट तुम डाइवर्स पे के साथ ही ऐड कर सकते हो इफ यू वांट टू. ओके. एंड लाइफ इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट अलग से लिख सकते हो, योर विश. ठीक है, चलो नेगेटिव्स देखते हैं. नेगेटिव्स भी सेट कि ना उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ को वो नहीं देती कंपनीज. जो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ को है ना मिलते हैं, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ का मतलब जो एक कंपनी के लिए बहुत लंबे समय तक काम करते हैं वो नहीं मिलते. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलते. और पीपल हु चेंज देयर जॉब्स वेरी ऑफन. देखो, एम्प्लॉयर्स ऑल्सो वैल्यू लॉयल्टी. एम्प्लॉयर्स को भी क्या चाहिए होती है, लॉयल्टी, कि मेरे साथ ये बंदा लॉयल है, मेरे से टिका रहे. अगर उनको वो नहीं दिखती, वो उनको बेनिफिट्स नहीं देंगे. ओके. एनीथिंग एल्स, और क्या नेगेटिव तुम्हें लगता है? एक और तुमने मेरे को क्या बोला था नेगेटिव, बार बार चेंज करने का. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं वो फॉर्म कर पाते, बॉन्ड्स. ठीक है, बिकॉज दे कीप चेंजिंग देयर वर्क प्लेस, दे कीप चेंजिंग देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सो दे डोंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विच इज अ नेगेटिव. ठीक है. और और क्या बोलोगे? मेरे को एक और पॉइंट लगता है कि दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द, ये पॉइंट पता नहीं तुम स्ट्रांग मानते हो, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. डू यू एग्री विद दिस? यस सर. बच्चों को क्या चाहिए होती है सबसे ज्यादा? हम क्या बोलते हैं बच्चों को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? Privacy, आसपास का माहौल उनका safety, इम्पोर्टेंट. हाँ, अमन, अमन व्हाट डिड यू से? safety, sir.
सेफ्टी, यस। आई वांट अनदर वर्ड, एस से शुरू होता है। क्या वर्ड? वो वर्ड डालोगे तो ये पॉइंट बिल्कुल बन जाएगा। स्टेबिलिटी, राइट। उनका बार बार स्कूल ना चेंज हो। ठीक है, पहले 2 साल उनका मेन कोचिंग वो चल रहे थे, चलो गुजरात में थे, वहां पे लोग गुजराती बोल रहे थे। अब तुम उनको ले गए कहाँ पे? अब तुम उनको ले गए कहीं और, जहाँ पे वो गुजराती क्या, वहाँ पे कोई और लैंग्वेज है। फिर कहीं और ले गए, वहाँ पे कुछ और लैंग्वेज है। फ्रेंड्स उनके बार बार बदली जा रहे हैं। सो स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन पे फर्क पड़ता है, उनकी फैमिली पे फर्क पड़ता है। पेरेंट्स तो मूव हो जाते हैं, बट वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, देर एडल्ट्स। बट चिल्ड्रन के लिए एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बार बार वो अपने फ्रेंड्स खोते हैं, लॉट ऑफ। मैं तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखता हूँ जहाँ पे बच्चे रुसे ही होते हैं इस बात के लिए कि पेरेंट्स ने उनको कहीं फिर मूव करके कहीं और ले गए। तो दे आर ऑलवेज इन अ बैड मूड बिकॉज ऑफ दैट। दे लूज देयर फ्रेंड्स, उनको लगता है कि मेरी फ्रेंडशिप का कुछ नहीं, उन्होंने बस अपना देखा। ठीक है। सो नाउ विच डू यू थिंक यू वांट टू गो विद? अब तुम मेरे को डिसीजन लेके बताओ कि तुमने पॉजिटिव्स की तरफ जाना है कि नेगेटिव्स की तरफ। क्या तुम्हें स्ट्रांग, कौन से तुम्हें लगता है तुम्हारे पॉइंट स्ट्रांग लगेंगे? सर नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रांग लग रहे हैं अमन। ठीक है, तो अब तो दो पॉजिटिव चुन ले जो तेरे को लगता है अच्छे पॉजिटिव्स हैं। तो एक तो कल्चर वाला ले लेते हैं, ब्रॉड माइंडेड। ठीक है। और एक डाइवर्स एक्सपीरियंस, जिनसे उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है, दे गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है। एवरी एवरी टाइम वो चेंज करते हैं, उनको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है एंड एवरीथिंग। तो हम ये दो पॉजिटिव्स कर लेते हैं, इन तीनों को नेगेटिव्स कर लेते हैं। ठीक है। सो अब हमने इस ऐसे को पार्शियल बनाना है। हमारे दो पॉजिटिव्स हैं, तीन नेगेटिव्स हैं। अब कोई मेरे को बताएगा मैं कैसे लिखूंगा इस ऐसे को? तो पहला स्टेप सेम ही है, इंट्रोडक्शन को क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखनी है पैराफ्रेज करके टॉपिक को। इट इज ट्रू दैट इन recent years many people change their career and place of residence frequently. फ्रीक्वेंटली का होता है अक्सर, मतलब बहुत ज्यादा चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने टॉपिक लिख दिया, मेनी पीपल यहाँ पे। That's it. देखो मैं ना, you and look at me what I'm doing. Why do I write in front of you? I want to show you how little time I spend on my introduction. And you do the complete opposite. You spend little time thinking about the points, और तुम्हें वो पहली लाइन परफेक्ट लिखनी होती है। वो पहली लाइन पे मत जाओ, पैराफ्रेजिंग है टॉपिक की, वहां पे तुम पैराफ्रेज करके भी बैंस नहीं लाने वाले हो। क्या आ जाएंगे बैंस? वो बस टॉपिक ही तो लिखना है। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते होते हैं, सोचते नहीं है। अब शी थॉट, अमन सेड कि हमने ड्रॉबैक ज्यादा लिखने हैं, पॉजिटिव्स कम लिखने हैं। तो मैं पहले लिखूंगा वाइल। वाइल कंसेशन के लिए यूज होता है, हालांकि देर आर सर्टन, ठीक है, देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड। इस ट्रेंड के थोड़े बहुत फायदे हैं। आई बिलीव इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट ओवरऑल। ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल। ओवरऑल इज अ वर्ड आई यूज फॉर partial essays. That's it. That's my introduction. There is nothing here, nothing more here. इतनी ही इंट्रोडक्शन बनती है मेरी। अब पहले पैराग्राफ में अब रीजंस नहीं लिखने, तुमने थोड़े से पॉजिटिव्स लिखने हैं, तो यू कैन से एडमिटेडली changing job or changing one's job and residence and place of residence became multiple times has certain advantages or benefits. अब यहाँ पे मैं वो दो बेनिफिट्स लिख दूंगा, टू बिगिन विथ एंड इन एडिशन। That's it. That's my first paragraph. Anyone has any doubts, please let me know here. यहाँ तक क्लियर है, बॉडी पैराग्राफ 1 तक। किसी के मन में डाउट्स हैं? मैंने लेस साइड पहले लिखी है। एडमिटेडली वो जो वर्ड होता है वो लेस साइड के साथ लगता है। बेनिफिट्स लेस वाले उसके साथ एडमिटेडली वाली लाइन लगती है। प्लीज अगर तुम ज्यादा वाले पहले लिखोगे, ये वाला वर्ड मत लिखना एडमिटेडली। अगर मेरे पैटर्न के साथ चेंजेस करोगे, करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर एडवांटेजेस ज्यादा होंगे तो मैं पहले एडवांटेजेस नहीं लिखता, मैं पहले डिसएडवांटेजेस लिखता और एडमिटेडली लिखता। एडमिटेडली इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, प्लीज नो दैट। ओके, यू मेक स्मॉल चेंजेस, पूरा ऐसे बदल जाता है। फिर आई यूज द वर्ड डिस्पाइट द एडवांटेजेस मेंशन्ड अबव। मुझे ये लगता है कि ये चीज नेगेटिव है, मेंशन्ड अबव। आई बिलीव दिस ट्रेंड इज
हार्मफुल फॉर द पीपल एंड सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल है। एक पॉइंट जो मैंने बताया नहीं और मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, ये इकोनॉमी के लिए भी नेगेटिव है। कैन समवन टेल मी हाउ दिस इज नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी? मुझे ये मेरा पॉइंट है ना, तुम नहीं सोच पाओगे। आई आई फेस दिस, लोग चेंज करते जॉब, तो मुझे ये नेगेटिव लगता है और मेरे को बहुत नेगेटिव लगता है। तो कोई बताएगा कि मेरे को क्या नेगेटिव आ रहा है जब मेरे टीचर्स बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं? So maybe training, initial 3 months training. हाँ, मुझे बार बार ट्रेनिंग पे स्पेंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग मंथ्स में वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। सो ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ रही है, सो कंपनीज का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ऑन ट्रेनिंग। सो एवरी फ्यू मंथ्स कोई ना कोई छोड़ता रहता है, फिर नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, फिर उनको काम सिखाया, फिर वो छोड़ के चले गए। सो दिस इज सच अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द इकोनॉमी एट लार्ज, दैट पीपल आर चेंजिंग। तो फिर वो बार बार वो हो रहा है। अब इसको बेनिफिशियल भी कह सकते थे इकोनॉमी के लिए, जब लोग बदलेंगे, वहाँ नई जगह जाएंगे, वो नई चीज़ें खरीदेंगे। सो यू कैन कंसिडर दैट टू बी अ पॉजिटिव एज वेल, अगर तुम वैसे सोचना चाहते हो। पर मैं ये कहता हूँ कि कंपनीज के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव है, बिकॉज दे हैव टू स्पेंड a lot of money and time on training. So every time कोई एम्प्लॉय चेंज करता है, रेगुलरली लोग चेंज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ऑफन चेंज कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट एंड ट्रेनिंग जो, मतलब द इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग, वो उनकी वापस हो ही नहीं पाती। इसीलिए कुछ कंपनीज ऐसे रूल्स बनाती है ना, कि आपका क्लॉज है, अगर आपने जॉब छोड़ी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लीगली वो वैलिड नहीं है। कोई आपको धमकी दे सकते हैं, आप वो, मतलब आप बीच में जॉब छोड़ दो, कोई आपसे पैसे नहीं ले सकता ऐसे करने के। ठीक है, बट कंपनीज ये साइन ज़रूर कराती हैं, लाइक बिग कंपनीज मेरे से भी साइन कराए थे। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक व्हेन आई वर्कड फॉर माय फर्स्ट कंपनी, दे मेड मी साइन कि मैं 2 इयर्स के लिए जॉब नहीं छोड़ूंगा। एंड माई कंपनी नेम वॉज इन्फोसिस, अगर किसी को पता है। तो उनकी जॉब थी, मैंने करी नहीं, पर उन्होंने मेरे से साइन कराए थे। ठीक है, आई डिड नॉट ज्वाइन द जॉब एक्चुअली, मैंने ज्वाइन ही नहीं करी थी। ठीक है। So, anyways, अब तुम्हारा यहाँ पे आ गया, डिस्पाइट द एडवांटेजेस मेंशन्ड अबव, आई बिलीव दिस ट्रेंड इज हार्मफुल। अब इसके बाद तुमने पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली करके अपने 3 ड्रॉबैक्स लिख दो। अगर 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा लिख दो, नहीं तो मैं बोलूँगा इसमें से स्ट्रॉन्गर 3 लिख के वो स्ट्रॉन्गर 3 के हिसाब से बना दो, जो भी बना सकते हो। Then you come to the conclusion. Conclusion is nothing but repetition of our opinion. So I would like to reiterate वही वाली चीज़ जो वाइल के साथ इंट्रोडक्शन में लिखी थी, वही चीज़ लिखनी है। I would like to reiterate, पर टॉपिक दोबारा ज़रूर लिखना है यहाँ पे, that while there are certain upsides or benefits, positives of changing career and place of preference. ठीक है, regularly, I believe it is harmful or detrimental on the whole. Detrimental is another word which means harmful. ये on the whole बहुत detrimental है for the society. Society के लिए on the whole ये चीज़ बहुत नुकसानदायक है, detrimental है। That's what I would do. Now if anyone has any doubts here, please let me know. नहीं तो ये partial का है। ठीक है, अब मेरे को ये करना है, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एसे। मेरे को उसका ये पैटर्न चाहिए, वन साइडेड का भी और पार्शियल का भी, और कुछ नहीं चाहिए। आई वांट टू सी द पैटर्न, वन फॉर वन साइडेड, वन फॉर पार्शियल। पूरा ऐसे ही लिख दो, चाहे 2 ऐसे कर लो, मुझे नहीं पता, पर ऐसे अपने हाथ से निकाल दो ये वाला ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, so that's it for today's class. I'll end it. I'll share both the 2 essays with you. You can attempt both. अगर तुम चाहते हो एक पार्शियल की तरह, एक वन साइडेड की तरह, तुम दोनों कर लो। ठीक है, सॉरी, एंड दैट्स इट। एनीवन, एनी डाउट्स? सर जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर मैं डिसएग्री वाला हूँ या डिसएडवांटेजेस हूँ, तो उसको मैं बीपी सेकंड में एक्सप्लेन करूंगी, इज इट? हाँ हाँ हाँ, मैं उसका ठीक है। भी रखता हूँ, मेरे पैटर्न के हिसाब से स्ट्रॉन्ग साइड बाद में आती है। जी सर। ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग साइड ओके। पहले वाला पैटर्न भी करा सकता हूँ, कभी वो करवा दूंगा, पर अभी तुमने पेपर में एक ही ऐसे लिखना है ना सिमरन, तो मैं यस सर। करा रहा हूँ जिसमें स्ट्रॉन्ग साइड बाद में है। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। डन, ओके।
The number of paragraphs, like, is it only gonna be 4 or we can Yeah, keep मैं 5? आजकल 4 ही करा रहा हूँ most essays except a few. Discuss essays 3. Okay, Well, 5, not 3, 5. 5. Okay. Done? ठीक है? Okay. So we'll start with the reading class in another 10 minutes, and I'm going to end this class now.